بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سب بول ٹی وی، اور آج آپ کے لیے بہت ہی اہم خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی خبر جو تفصیل سے آپ کو بتائی جائے گی وہ ہے ساؤتھ چائنا سی سے۔ ان حالات کے متعلق جو حال ہی میں امریکہ اور چائنا کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان، انڈیا اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بہت اہم خبریں سامنے آئی ہیں، جن کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک تصویر اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے، اس کو غور سے دیکھ کر ذہن نشین کر لیں، کیونکہ تمام تفصیلات جو اس ویڈیو میں سب بول ٹی وی آپ کو بتانے والا ہے وہ سب اسی تصویر میں ہی ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو واقعہ حال ہی میں پیش آیا ہے، امریکہ نے کافی پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ حالات کے مطابق ایسا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ کو یہ یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ اسی دور اندیشی کی وجہ سے وہ کبھی چائنا پر انٹرنیٹ خفیہ معلومات کی ہیکنگ کا الزام لگاتا رہا اور کبھی چائنیز کمیونسٹ پارٹیز پر انلیگل ایکٹیویٹیز کا الزام لگاتا رہا۔ چائنا کا قونصل خانہ بند کرا دیا، اس کے علاوہ ہواوے ملازمین پر ویزا بین لگا دیا۔ یہ تو وہ حالات تھے جن کے بارے میں تقریباً ہر شخص ہی جانتا ہے، لیکن کچھ خبریں ان سائٹ سے بھی سامنے آئی ہیں جو ان سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ وہ ساری خبریں آپ سے شیئر کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم واقعہ جو چائنا نے امریکہ کے خلاف کیا ہے پیش آیا ہے۔ آدھے منٹ کے اس واقعہ نے امریکہ کا وہ حال کیا ہے کہ امریکہ پوری زندگی کبھی اس آدھے منٹ کو نہیں بھول سکے گا۔ پہلے ذرا امریکہ کی انٹرنل سچویشن سن لیں، وہ یہ کہ 3 نومبر کو امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت کی صورتحال کے مطابق جو بائیڈن کا پلڑا بھاری ہے، لیکن یہ چونکہ سیاست ہے اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کے وقت یہی اکثریت جو بائیڈن کے پاس رہے گی یا نہیں، کیونکہ 2016 میں ہیلری کلنٹن کے پاس تقریباً 30 لاکھ ووٹوں کی اکثریت تھی ٹرمپ کے خلاف، لیکن ہیلری کلنٹن کے پاس الیکٹورل سسٹم کے ہیوی نہ ہونے کی وجہ سے ٹرمپ پھر بازی لے گیا اور وائٹ ہاؤس کا مالک بن گیا۔ لیکن اس جیت کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کچھ باتوں میں ناکام ہوا، جیسا کہ کورونا کی صورتحال میں چائنا سب سے پہلا متاثر ہونے والا ملک تھا، لیکن چائنا نے ہی کورونا کے خلاف جنگ جیت کر سب پر برتری حاصل کی۔ امریکہ باوجود اپنی جدید ترین ریسرچ لیبز کے اور تمام وسائل کے بھی کورونا کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں معاشی طور پر امریکہ کا گراف بہت حد تک گر گیا۔ امریکہ کی ہی ایک سائنٹیفک یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق یہ چانس بہت زیادہ ہے کہ 3 نومبر کو تو الیکشن ہے، لیکن 2 نومبر تک کورونا کی اموات کی تعداد 2,30,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا بھی ایک منفی اثر ٹرمپ الیکشن کیمپین پر آئے گا، جو مخالف جو بائیڈن کی برتری کی صورت میں آگے آ سکتا ہے۔ دوسرا بہت ہی اہم نقطہ جو ٹرمپ کے ناکامی کا باعث ہو سکتا ہے وہ ہے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، افغانستان میں سالوں جنگ لڑنے والا، اسلحہ اور جانی و مالی نقصان اٹھانے والا امریکہ افغانستان سے معافی مانگ کر نکلا۔ یہ پسپائی بھی ٹرمپ کے اس وعدے کے خلاف تھی جو اس نے اپنی عوام سے کیا تھا، افغانستان میں مکمل طور پر امریکن حکومت کے قیام کا۔ تیسرا نیگیٹو امپیکٹ جو ٹرمپ کی ہار کا باعث بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ لیتا تھا۔ بالکل ٹرمپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ دنیا میں بہت دہشت گردی ہے، 9/11 کے واقعے کی طرح آپ کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تو مجھے ووٹ دیں، میں آپ کی جانوں کا ضامن ہوں، میں دنیا سے دہشت گردی کا صفایا کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان نیگیٹو امپیکٹس کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں وہ سمجھیے گا۔ دہشت گردی کے متعلق لوگوں کے ذہن بہت حد تک صاف ہو چکے ہیں، وہ اس اصلیت کو کافی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ امریکہ کے متعلق امریکن عوام اور لیڈرز کا یہ یقین ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک میں سے صرف امریکہ ہی واحد لیڈر ہے جو باقی تمام ممالک کو لیڈ کرتا ہے، اور باقی تمام ممالک اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے پابند ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں صرف امریکہ کی طاقت کا ہی اثر و رسوخ ہو، لیکن گزشتہ 4 سالوں سے یہ نظریہ کچھ اس کے برعکس جا رہا ہے کہ امریکہ کی بجائے چائنا کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھ گیا ہے۔ کورونا کے باوجود چائنا معیشت کے لحاظ سے، سفارتی تعلقات کے لحاظ سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے ایک مضبوط حریف بن کر ابھرا ہے، تو امریکن عوام کے مطابق یہ ان کے ارمانوں کی پسپائی ہے کہ امریکہ حاکم کی بجائے محکوم بنے۔ لہٰذا یہ پوائنٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے الیکشن میں ہار کا باعث بن سکتا ہے۔
सियाफाम अमरीकी के कत्ल का वाकया एक बहुत ही अहम वाकया था। सियाफाम मुस्तकिल अमरीकी इस वाक़े के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे। ये इंसानी हमदर्दी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो ट्रंप ने आवाम के दिलों पर छोड़ा, लिहाजा इस बिना पर ट्रंप कन्फर्म हार सकता है। अब एक बयान की तरफ चलते हैं जो कि ट्रंप हरीफ जो बाइडन ने दिया है, वो ये कि वो मुसलमान अमेरिकन जिनको अमेरिका से निकाल दिया गया था उन पर से पाबंदी खत्म कर दूंगा। सदर बनते ही सबसे पहला काम मेरा ये होगा। अब मुस्लिम वोट भी जो बाइडन के हक में चला जाएगा, लेकिन यहाँ इसराइल का ट्रंप पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ वादे मनवाने का दोनों सरबराहों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में से कुछ तो ट्रंप ने मान लिए, लेकिन एक बड़ा और अहम वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, और वो वादा था यरूशलेम और वेस्ट बैंक इनेक्सेशन का इसराइल में जम कराने का, जो कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस वादे के बदले इसराइल ने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करना था, लेकिन चूंकि ये वादा पूरा नहीं हुआ तो इसराइल भी ट्रंप की हिमायत से दस्तबरदार हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के लिए शदीद मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन यहूदी इसराइल के मातहत हैं और एक बहुत बड़ी अक्सरियत अमेरिका में मुकीम है। अगर इसराइल ने ट्रंप मुखालफत का ऐलान कर दिया तो अमेरिकन यहूदी कभी ट्रंप की हिमायत नहीं करेंगे। अब जो एक पॉइंट आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत टेक्निकल है, उसे जरा गौर से समझिएगा। ये तमाम बातें आपको उस आधे मिनट की तरफ लेकर जाएंगी जिस आधे मिनट में चाइना ने अमेरिका को पागल कर दिया था। अमेरिका ने एक कैंपेन शुरू की है, क्लीन चाइना फ्री इंटरनेट। आपकी स्क्रीन पर यह खबर चल भी रही है। इस मंसूबे का मकसद ये है कि अमेरिका अपने मुल्क से चाइना का इंटरनेट तक रसूख मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, यानी कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर या किसी भी स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो चाइनीज़ ना हो, जैसे टिकटॉक और बहुत सी ऐप्स जो चाइनीज़ हैं ये मुकम्मल तौर पर अमेरिकन इंटरनेट में ना हो। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि चाइना की ऐप्स अमेरिकन मोबाइल्स पर ना तो अवेलेबल होंगी और ना ही चलेंगी। दूसरा ये कि चाइनीज़ ऐप स्टोर्स में हम अपनी एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे, यानी ना ही एप्लीकेशंस लेंगे और ना ही देंगे। इसके अलावा इस खबर में ये भी है कि अमेरिका ने भी ये फैसला किया है कि चाइनीज़ क्लाउड्स को भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये क्लाउड्स क्या हैं? तो नाजरीन, क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। इन सर्वर्स में बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क्स होती हैं जो दुनिया भर का डाटा स्टोर करती हैं। ये सर्वर्स चाइना, अमेरिका, थाईलैंड, कोरिया और बहुत से बड़े बड़े ममालिक में मौजूद हैं। ये सर्वर्स किराए यानी रेंट पर इस्तेमाल के लिए ऐप्स कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं कि अपनी ऐप्स के एडमिन डाटा और यूजर्स डाटा स्टोरेज के लिए हमारे सर्वर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस सर्वर्स का किराया वसूल करते हैं और मुख्तलिफ शहरों हत्ता के ममालिक में अपने सर्वर्स बनाते हैं ताकि किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी उस ऐप कंपनी का डाटा ज़ाया ना हो। अब अमेरिका का मंसूबा यह है कि अमेरिका चाइना के क्लाउड्स इस्तेमाल ना करे और चाइना अमेरिका के क्लाउड्स। अमेरिका यहाँ तक कोशिश कर रहा है कि चाइना किसी भी सूरत में अमेरिकन क्लाउड्स में घुस ही ना सके, यानी चाइना किसी भी तरीके अमेरिकन सर्वर्स को हैक ना कर सके। ये तो हो गया ज़मीनी लिहाज से एक दिफाई मंसूबा इंटरनेट के मुतल्लिका। इसके अलावा अमेरिका ने समुंदर की तह में इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स की जो वायर्स बिछाई गई हैं उनको असर नौ चेक करने का भी मंसूबा बनाया है, और ये भी सुराग लगाने का कि कहीं समुंदर के नीचे अमेरिकन ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ चाइनीज़ ने छेड़छाड़ करके हैक ना किया हो। तो अब हम आपको असल बात की तरफ लेकर आते हैं। अब तक बताई गई तमाम तफसीलात का असल सिरा ही इस बात से जुड़ा है। अगर ये तफसीलात आपको ना बताई जाती तो आपको असल राज का और असल स्टोरी का अंदाज़ा ही नहीं होना था। तो व्यूअर्स, हुआ कुछ यूँ जैसा कि पहली वीडियोस में भी बताया गया था कि अमेरिका ताकत के घुमंड में अंधा हुआ फिरता है। साउथ चाइना सी में ये बार बार जंगी मशकें करता है और इन मशकों की आड़ में 100 नॉटिकल माइल्स तक चाइना की तरफ चला जाता है। आगे से चाइना वार्न करता है, ये फिर वापस आ जाता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ऐसा हुआ कि अमेरिका 70 नॉटिकल माइल्स तक आगे आ गया, लेकिन इस बार चाइना ने बिल्कुल वार्न नहीं किया। यहाँ ये बताते चलें कि समुद्री हदूद में फासले नॉटिकल माइल्स में मैयर किए जाते हैं। जैसे ही अमेरिका 70 नॉटिकल माइल से आगे आया, अचानक ही अमेरिकन बहरी जहाज़ों का जंगी फाइटर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया, यानी फ्यूल पावर से जहाज़ चल तो रहे थे लेकिन आपस में राब्ता नहीं कर पा रहे थे।
चूँकि ये तमाम निज़ाम यानी कम्युनिकेट का मुकम्मल इन्हिसार सैटेलाइट के ज़रिए होता है, इसलिए चाइना ने अपना कोई ऐसा सिस्टम एक्टिवेट किया जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी और एयर फोर्स का तमाम कम्युनिकेट सिस्टम ही ब्लॉक हो गया। नाजरीन, जंग के दौरान राब्ता ही असल काम होता है। बिना राब्ते के जंग आपके लिए शिकस्त का ही बाइस बन सकती है। जैमर को एक बयान के मुताबिक 34 सेकंड और एक बयान के मुताबिक सिर्फ 37 सेकंड ही ऑन किया गया। इस मुख्तसर से टाइम ने अमेरिका के पांव तले से जमीन निकाल दी। 37 सेकंड के बाद चाइना ने जैमर ऑफ कर दिया और सैटेलाइट से अमेरिकन नेवल और एयर फोर्स का जो ही राब्ता बहाल हुआ, उसी वक्त इस बहादुर मुल्क ने अपने जहाजों को वापसी का हुक्म दे दिया और दोबारा इस वक्त की इतलात के मुताबिक चाइना के एरिया की तरफ नहीं गया। तो नाजरीन, जो तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखाई थी उस पर अब गौर करें तो पता चलेगा कि तमाम कड़ियां जैमर की तरफ ही जा रही हैं। मजीद ये कि जैमर की वजह से सैटेलाइट से मुकम्मल राब्ता खत्म होना बहुत ही खौफनाक चीज है। जहाजों में बहुत सारे ऐसे हथियार भी होते हैं जो अमेरिका में बैठकर चलाए जाते हैं। ड्रोन्स का सिस्टम बिना कम्युनिकेट के चल ही नहीं सकता। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज पर गौर करें, अगर चाइना सैटेलाइट से सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकता है तो इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह को तब्दील करके कमांड्स को भी तब्दील कर सकता है। किसी हथियार को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकता है। एक और मिसाल से आपको समझाते हैं। इंडिया ने चंद्रयान मिशन के नाम से अपना सैटेलाइट खला में भेजा था। पायलट के साथ इनका मुसलसल राब्ता था। सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन भी डिटेक्ट हो रही थी, लेकिन अचानक ही इनका दोनों से राब्ता यानी कंट्रोल रूम का पायलट और सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हुआ और पूरे का पूरा मिशन ही खत्म हो गया। बिल्कुल यही सूरत हाल हालत जंग में कम्युनिकेशन मुनक़ता होने की सूरत में अमेरिका के साथ हुई और ये खबरें हमारे इंटेलिजेंस इदारों और अमेरिका के अंदरूनी इदारों से बाहर आई हैं कि किस बुरी तरह से अमेरिका उन 37 सेकंड्स में वहां एक्सपोज हुआ है। अमेरिका वापस भी इसलिए भागा कि अगर कोई और गलती की तो पीछे वालों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ हुआ क्या था। अमेरिका अभी तक उन 37 सेकंड्स की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ है कि आखिर उस टाइम में चाइना ने किया क्या था। अमेरिकन दिफाही माहिरीन इस बात पर गौर फिक्र कर रहे हैं कि अगर चाइना ने सैटेलाइट सिस्टम ही मुकम्मल ब्लॉक करके हम पर हमला कर दिया तो अमेरिका किसी भी सूरत चाइना से जीत नहीं पाएगा। तो अमेरिकी दिफाही माहिरीन ने इसका हल ये निकाला कि चीन की तमाम एप्लीकेशंस को, क्लाउड्स को और ऐप स्टोर्स को अमेरिका में बंद कर दिया जाए। अमेरिका में उनकी एक्सेस खत्म कर दी जाए। दूसरे लफ्जों में अमेरिका के इंटरनेट में चाइना का इंटरनेट नहीं होना चाहिए। नाजरीन, तमाम सूरत हाल के बाद एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि अभी तक अमेरिका को यही नहीं पता चल सका कि चाइना ने वहां ऐसा किया क्या था कि जिससे तमाम सिस्टम ही मफलूज हो गया था। दूसरे नंबर पर यह कि यूरोप, अमेरिका वगैरह आज तक चाइना की वेपन्स कैपेबिलिटी का अंदाज़ा ही नहीं कर पाया और ना ही कभी चाइना ने खुल्लम खुला अपने दिफाई सिस्टम या वेपन्स के बारे में कुछ बताया हो। चाइना अपने फ़ायदे नुकसान को छुपा कर रखता है, वो एक लिमिट में रहता है। गलवान में कितने चाइनीज फौजी मारे गए और जख्मी हुए आज तक किसी को नहीं पता चल सका और चाइना की यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो अपने नफ़ा और नुकसान और फौजियों दिफाई ताकत को छुपाता है। अब तक के हालात के मुताबिक और इतलात के मुताबिक साउथ चाइना सी पर अमेरिका का दोबारा किसी पेशकदमी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब की बार 37 सेकंड से भी ज्यादा गेम प्ले हो सकती है। हो सकता है इस बार हर बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। बहरहाल चाइना ने तवील सब्र के बाद अमेरिका को विद इन सेकंड्स एक ऐसा सरप्राइज दिया है कि अब अमेरिका दांतों में उंगलियां दबा के बैठा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि कुछ कर सके। साउथ चाइना सी के नेक्स्ट लेवल के हालातों वाक़यात की तमाम तफसीलात वक्तन फवक्तन आपके साथ सब बोल्ड टीवी शेयर करता रहेगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब बोल्ड टीवी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।